वर्ष 2021 में परिषद द्वारा अपने वैज्ञानिकों को एक व्यापक डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल की सुविधा प्रदान करने के लिए CCRH ई-लाइब्रेरी को विकसित किया गया था और इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इस कंसोर्टियम को विकसित किया गया है। मई हस्तियों को एक मंच पर देख पा रहे हैं। भारतीय परंपरा में हम अपने आदर्शों को सर्वप्रथम रखते हैं और उन्हीं आदर्शों का पालन करते हुए हमारे परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आज इस सम्मानित पद पर विराजमान हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर होने के नाते हमें यकीन है कि माननीय होम्योपैथी के बारे में जानकारी जरूर रखते होंगे। बहुत ही श्रद्धा व विनम्रता के साथ मैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को अब मंच पर उनके उद्घाटन भाषण के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको राह दिखाएं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी। सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, Ministry of Ayush, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। नाम में सब कुछ है। सर्बानंद, सबका आनंद। जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, and he was very kind to me, expressing sentiments, I was worried. My wife could have disagreed. I am grateful to her for observing silence. माननीय मंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। He has sought from everyone 100% commitment. तो मेरे को एक पुरानी घटना याद आ गई। When I had gone to the US along with my wife, and we had gone to Statue of Liberty. That was the time in 80s where you could go to Statue of Liberty freely. And there was a quote of Mahatma Gandhi. I respect your liberty because I care for mine. That was the substance of that quote. Ladies and gentlemen, the Union Minister Sarbanand Sonowal has asked for your 100% commitment because he always gives 100% commitment. I have something in common with him and not with others on the dais. We both are law graduates. Dr. Mahendra Bhai Muzpara, Honorable Minister of State, Ministry of Ayush, Ministry of Women and Child Development. ये पेशे से डॉक्टर हैं और दिल की बातें ज़्यादा समझते हैं क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो अपने भाषण में भी he has touched your heart and made a very impassioned plea that you all should be in missionary mode to serve humanity by being homeopath COVID warriors. डॉक्टर मनोज राजौरिया, इनसे पुरानी जान पहचान है। We belong to the same state. I came to know him for the first time even before he became member of parliament. It's his second term. Because he took a great initiative in having a homeopathy clinic in the name of his mother, Shanti. And his spinal strength of a university that promotes homeopathy. A simple man,
a modest man, but an achiever all through. I take Dr. Manoj Rajoria as a foot soldier of homeopathy. Sri Sunil Kumar Gupta, a very senior IAS officer of 1987 batch, secretary to the Vice President. Well, he has a great spouse support. The wife is a doctor. An honor I share with him. My wife is also a doctor. Padam Shri वैद्य राजेश कोटेचा जी, इन्होंने मेरे को अंदर बाहर से देखा हुआ है. More than a decade ago, me and my wife had the occasion to go to his establishment in Jaipur. The establishment is on a height that matches his own height in the profession. Even then I was motivated and inspired by his commitment because there was no element of commerce. And as a lawyer then I suggested, how much money can you make from this establishment? His answer was, enough, but it is computed in terms of service. We have in the audience Dr. Sangeeta A. Dugal. Ma'am, you were different. Very different. Like a part of the color of your sari, you gave Dr. Sudesh Dhankar a pink rose, while everyone had the benefit only of red rose. I will not go to the extent of calling it a gender bias, but if it had been otherwise, it would have been so. Dr. Subhas Kaushik. There are two Subhas here, both are universities, sitting next to each other. Rahul Sharma ji, all functionaries, officials of the ministry. We have in the audience my doctor. While I was governor state of West Bengal for 3 years, and that was the time I was required to be more fitter than now. Fitness was all important because the challenges require that you remain physically fit. So Dr. Rathim Chakrabarti, Chairman West Bengal Red Cross, was my physician. But he shares one habit with my wife. They both believe in traditional medicine and homeopathy and then say it is non-invasive, it is impactful, it has no side effects other than positive effects on the patient. उपस्थित महानुभाव, विश्व होम्योपैथी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। हर साल 10 अप्रैल को डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है, पर पिछले कुछ सालों में बात ही कुछ और है। शुरुआत 2014 में हो गई थी, पहले भी था, और 2017 से कोटेचा जी लगातार अपने मंत्रीगण के मार्गदर्शन में इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी पर है। 2023 की जो थीम है अत्यंत सार्थक है, होम्योपैथी परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। जब मैं इस पर ध्यान दे रहा था, मुझे एक और सामयिक विषय की याद आ गई।
दुनिया में भारत का डंका तो बज ही रहा है। वी आर ऑन द राइज एज नेवर बिफोर एंड आवर राइज इज अनस्टॉपेबल। पर इस वर्ष भारत हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 और क्या लोगो दिया है, क्या मोटो दिया है। हजारों साल की संस्कृति का निचोड़ है। मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और बिना स्वास्थ्य के फ्यूचर हो नहीं सकता। हमारी आस्था वसुधैव कुटुंबकम, ये महाउपनिषद का एक मंत्र है। और जब इस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से पहला सुख निरोगी काया। ये कहा गया है बिना निरोगी काया के सब कुछ सार्थक नहीं होता, कुछ नहीं होता सार्थक। विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कहा पहला सुख निरोगी काया। अमृत काल में हमको संकल्प लेना चाहिए। ये आजादी के 75 साल हैं। आज नींव रखी जा रही है, फाउंडेशन रखी जा रही है फॉर 2047। मेरे सामने जो यंगस्टर्स हैं, यू आर द रियल सोल्जर्स, वॉरियर्स ऑफ 2047। भारत 247 में क्या होगा? और वो तभी होगा जब हम स्वस्थ रहें, भारत पर गर्व करें, भारतीयता पर गर्व करें, और हम सजग रहें हर तरीके से कि जहां भी कहीं हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर कुअसर हो और भारत की अस्मिता पर प्रहार हो, कुंठित करना अनिवार्य है। देश हो या विदेश, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इस प्रकार के सभी कुप्रयासों को असफल करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। We must ever take pride in our historic achievements and be proud Indians। और मुझे बताइए क्यों नहीं, जिन्होंने सैकड़ों साल हम पर राज किया, सितंबर 2022 में उनको पछाड़ दिया। India became the 5th largest global economy on the planet, and by all objective assessment, by turn of the decade, it will be the 3rd largest economy. इसका आधार है commitment of our people and their good health. If we are assured of good health, nothing can stop us. We must take pride for another reason. आप मन को टटोलिए, थोड़ा चिंतन कीजिए। Have you ever noticed, ever, a foreign national or a foreign dignitary on visit to this great democracy ever criticizing his nation, decrying his nation? क्या कभी भी आपने कभी देखा है कि भारत में विदेश से जो आता है या विदेश का कोई बड़ा व्यक्ति आता है, क्या कभी उसने अपने गृह देश के बारे में बुरी बात कही है? नहीं कही है। हमारी संस्कृति तो बहुत पुरानी है। जब आंसर नो है तो हमें तो उत्कृष्ट मापदंड दर्शाना चाहिए। चिंतन का विषय है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं?
Why can't we take pride in our scientists? Why can't we take pride in our health warriors? Why can't we compliment our innovation? कौन सा देश है दुनिया का जिसका कोविड मैनेजमेंट अपने देश से बेटर था? आप लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. We must honor ourselves. We must believe in our self-respect. We must compliment our own talent. ऐसा नहीं कर हम बहुत नुकसान कर रहे हैं. We should not do it. And this has to be our national culture. एक सिंपल है, जब भी देश के बाहर जाएं, राजनीतिक चश्मे को यहीं छोड़ जाएं. उसमें देश का भी भला है, व्यक्ति का भी भला है. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स खत्म हो रही थी, उनका आखिरी भाषण था, एंड दैट वाज हिस्टोरिक. आप सबके समक्ष में इसलिए कहूंगा कि यदि अगर आप हम सबको स्वस्थ रखेंगे और हमारी सोच में विकार आ गया, तो हम जो कहते हैं ना, कात्यो क्या तो कपास हो जाएगा. जिस कपास से हमने थ्रेड किया है, दैट विल अगेन बी रिड्यूस टू कपास. ऐसी परिस्थिति में आई एम कोटिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हिज वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, हिज वेरी पावरफुल ऑब्जर्वेशंस आई कोट. और अंतिम भाषण था, सबसे महत्वपूर्ण था. आदमी को जब पता होता है कि ये मौका मेरे को जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तो मानकर चलिए, his focus, attention is to reflect sublimity and essence from a long-term perspective. He said, I quote, "What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people." Dr. B.R. Ambedkar further goes on to say, "But this much is certain, that if the parties place creed before country, creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood," unquote. So you have, friends, twofold job. One, to keep us healthy in body and mind, and also to ensure that our spirit, our functioning is committed to our nationalism. ओम सर्वे भवन्तु सुखिन. ओम, ये हमारा मंत्र है. हम सभी का चाहते हैं सभी खुश रहें. तभी फलीभूत होगा जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे. इसके अंदर मैंने राष्ट्रवाद का एक एंगल जोड़ा है, क्योंकि दुनिया के हालात को देखने से स्पष्ट है कि वी मस्ट बी कमिटेड टू आवर नेशनलिज्म. मैं व्यापारियों को, कॉरपोरेट सेक्टर को, उद्योगपतियों को भी आह्वान करूंगा, दे मस्ट ऑल्सो थिंक एंड रिफ्लेक्ट एंड स्टैंड कमिटेड टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म. जो चीज हमारे यहां हो सकती है, हम जिस चीज को पैदा कर सकते हैं, क्या वो बाहर से आनी चाहिए? अजीब लगता है, पतंग बाहर से आती है, दिया बाहर से आता है, फर्नीचर बाहर से आता है. हमारी प्रतिभा में कहाँ कमी है?
Therefore, no amount of economic gain can justify deviation from commitment to economic nationalism. Friends, healthcare is not just about medical treatment. It includes an individual's physical, mental, and emotional well-being and community's social and economic environment. चारों तरफ देखते हैं एक नई समस्या उभर रही है, स्ट्रेस, टेंशन, बग ऑफ कंपटीशन। जब एक इकोसिस्टम इमर्ज हो रहा है, हर आदमी को अपनी प्रतिभा को उजागर करने का माध्यम है। We have an ecosystem where, due to affirmative policies of governance, one is unable to fully exploit his or her potential. तो टेंशन किस बात का? We must develop a culture in the country. We must work to ensure कि टेंशन और स्ट्रेस को खत्म करें। And this blind, reckless pursuit of competitive mechanism must get rationalized, and I am sure all concerned will be careful about it. ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे आग्रह करूंगा, हर नागरिक को 24 घंटे में से 1 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देना चाहिए। Why we can afford to ignore our health? 24 घंटे में 1 देंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा, प्रगति की रफ्तार में गति आएगी, and we will get our due in the Committee of Nations. आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कौशल, प्रतिभा, योग्यता, ये आपका अर्जित धन सब अर्थहीन है। यदि काया अर्थात शरीर रोगी है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। You become a picture of that concern. People look at you with sympathy. This should end, and we must develop a culture. राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए भी देश का स्वस्थ होना जरूरी है। राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, our growth will be geometrical. Homeopathy as a form of treatment has a rich history spanning over 2 centuries. अच्छी बात यह है, in our country, in last few years, it is being nurtured, it is being developed, it has become a significant factor in contributing to our health apparatus and mechanism. The World Health Organization acknowledges homeopathy as the 2nd largest and fastest growing system of medicine. And as was indicated by the Honorable Minister, it is already there in more than 80 countries. ये अत्यधिक तनुकृत पदार्थों के उपयोग पर आधारित है, means connected to nature, connected to that essence which can only contribute with positivity with no side effects. शरीर को हील भी करता है, ठीक भी रखता है। अपने देश के 70 के दशक में 1973 में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम आया, एक अच्छी शुरुआत हुई, गुड बिगिनिंग। पर 2014 में 9 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण, वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस। It was on that day that government for the first time, reflecting spinally strong thought process, और एक नए मंत्रालय का जन्म हुआ।
इसका उद्देश्य था हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धति के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य के आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई। खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, achievements have been milestones. The complete turnaround, and people are increasingly involved in this kind of medicine, this kind of therapy that has come to us historically and from ages. कोविड महामारी को नियंत्रित करने में this facet of medicine has played critical role. बंगाल में राज्यपाल रहते हुए मैंने देखा होम्योपैथी किट्स were given to COVID warriors. They were extremely effective and impactful. प्रिवेंटिव भी थे, क्यूरेटिव भी थे, बोथ एस्पेक्ट्स वर देयर। अब जब कोविड की चर्चा करता हूं तो थोड़ी सी खराश आती है। आज के दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे देश का कोई कंपैरिजन नहीं किसी और से, हाउ टू मैनेज कोविड इफेक्टिवली। पर आप उस कालखंड में जाइए, जो कदम उठाए उनके बारे में क्या टिप्पणी की। जनता कर्फ्यू एक बहुत ही दूर सोच का संकेत देता है। उस समय 1.3 बिलियन पीपल by this one master stroke, the visionary prime minister could inspire the people that you must have people's curfew, and that was very successful. पर कुछ लोगों ने नुक्ताचीनी की, कुछ लोगों में डीएनए इतना जबरदस्त है कि नुक्ताचीनी का कोई मौका छोड़ते ही नहीं है। अब जहां व्यक्ति है नुक्ताचीनी में करो, आपकी प्रतिस्पर्धा है, समाज में हो, राजनीति में हो, कहीं भी हो करो। और जहां देश का मुद्दा है वहां किस बात की नुक्ताचीनी। मैंने खुद राज्यपाल की हैसियत से इस कर्फ्यू में भाग लिया। फिर हमने बजाया, कैंडल जलाई कोविड वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए। तो कुछ लोग उसकी साइंस में चले गए कि समझ में नहीं आता इससे हौसला कैसे बढ़ता है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन उन लोगों का जो खुद की जान हथेली पर लेकर समाज को सुरक्षा दे रहे थे, हमारे जीवन को बचा रहे थे, उनके लिए क्या इतना नहीं करेंगे। फिर आगे आया इनोवेशन, कैसे करेंगे, 10 गुण लग जाएंगे, हमें तो बाहर का ही वैक्सीन चाहिए। हजारों साल की संस्कृति में है कि जो हम में है वो औरों में नहीं है, हमसे लोग सीखते आए हैं, हमें दूसरों से सीखने में कोई परहेज नहीं है। But this can't be with a psych that we immediately go against our own people. और नतीजा देखिए, देश में तो प्रभाव पॉजिटिव रहा ही। हमने 100 से ज्यादा देशों की मदद की। विदेशों के जब लोग आते हैं और मुझसे उपराष्ट्रपति के नाते मिलते हैं, they express gratitude that even those times while engaging into taking care of your own population, large population, you were hand holding other nations. Vaccine Maitri, extremely effective. 220 करोड़ टीके लगाना
विशाल जैसे भारत में आसान नहीं है, पर उससे भी जबरदस्त क्या है, every vaccination certificate is digitally mapped and available on your mobile. दुनिया के किसी भी देश को यह दर्जा हासिल नहीं है। मेरा यह मानना है कि हाल के वर्षों में देश स्वस्थ रहे, नागरिक स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी प्रोडक्टिव होगा जब हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए। देयर हैव बीन क्रिटिकल इंटरवेंशंस, वेरी रिवार्डिंग, और नतीजा देखिए, 22 एम्स have been approved in the country, and there is almost one medical college that is coming up every month in last 8-9 years. दुनिया हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहती है? क्वालिटी मेडिसिन्स एंड वैल्यू फॉर मनी। इसका श्रेय जाता है ह्यूमन रिसोर्स पर, हमारे कमिटमेंट के ऊपर, एंड दैट इज वाई वी हैव दैट % ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आर कंट्रीब्यूटिंग 20% of the global demand after meeting demand of 1/6 of humanity जो यहां रहती है। एनालाइज कीजिए हाउ क्रेडिटेबल अचीवमेंट दिस इज। मुझे बहुत प्रसन्नता है, जानकारी ली है, आपका मंत्रालय और आपका सचिव, they can be complimented, focus on research, फोकस ऑन डेवलपमेंट, और पूरे देश के अंदर ताना बाना वेलनेस सेंटर्स का जो उभर रहा है, उसमें माननीय मंत्री जी आपके मंत्रालय की छाप है, वो उभर कर आती है, लोगों का आकर्षण बढ़ा है, एंड दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट। While I am grateful to the Honorable Minister Sonowal ji for affording me this rare opportunity of a very satisfying nature, I congratulate him, not only for leading the department to greater heights with larger involvement and impactful presence all over the country, but also for the region by bringing all stakeholders of traditional systems of medicine on one platform to generate wider acceptability. I wish great success to this endeavor. Wishing you all nirogi kaya, good health. Jai Hind. कोटि कोटि धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपका संबोधन वाकई सभी के लिए प्रेरणा स्रोत था। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की ओर से